मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमः करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम आत्म रूप अनुपम अद्भुत याहि लखे भव सिंधु तरो आत्म આ શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથ છે. 9મા અધિકાર ઉપર આપણે સ્વાધ્યાય ચાલી રહ્યો છે. એમાં પુરુષાર્થથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ સંબંધી થોડીક ચર્ચા આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. પંડિતજી અહીંયા પુરુષાર્થના અંતર્ગત તત્વ નિર્ણય કરવાનું કહ્યું. પુરુષાર્થમાં શું કરવાનું કહ્યું? तत्व निर्णय. आप भी एक प्रतिज्ञा लेवा जेवी है. ये भी एक प्रतिज्ञा में जोड़ देना, ऐसा है. यही प्रतिज्ञा लेने जैसी. तत्व विचार तो किया, तत्व निर्णय नहीं करता है तो मिथ्यात्व इतना सा भी नहीं हिलता, इतना सा ऐसा. इसलिए तत्व निर्णय पे बहुत वजन दिया पंडित टोडरमल जी ने. એમને કહ્યું કે તત્વ નિર્ણય કર. પુરુષાર્થમાં શું કર? તત્વ નિર્ણય કરવાનું કહ્યું. તો આ જેવી દલીલ કરી, ત્યાંથી ઉઠાવી, કાલે વિષય છૂટ્યો છે ત્યાંથી. એવી દલીલ કરી કે નિર્ણય કરવામાં અમારો ઉપયોગ તો લાગતો નથી, એટલી બુદ્ધિ છે નહીં અમારી પાસે. તત્વ નિર્ણય કરવામાં પણ એનું કારણ પણ કર્મ છે, કેમ કે અમારી એટલી બુદ્ધિ છે નહીં. તો પંડિતજી કહે છે કે તારી વાત સાચી છે. એકેન્દ્રિક આદિથી અસંગી પચિન્દ્ર જીવો માટે તું એમ કહે તેમને તો કર્મ જ કારણ છે, એ વાત તો સાચી છે. પણ આને તો તને તો જ્ઞાનાવરણાદિકના ક્ષૌક્ષમથી નિર્ણય કરવાની શક્તિ પ્રગટ થઈ. તું બાના નહીં કાઢે. જ્યાં ઉપયોગ લગાવે તેનો જ નિર્ણય થઈ શકે છે, પરંતુ આ અન્ય નિર્ણય કરવામાં તો ઉપયોગ લગાવે છે, પણ અહીં ઉપયોગ લગાવતો નથી. એ તો એનો પોતાનો જ દોષ છે. ત્યાં કર્મનું તો કાંઈ પ્રયોજન નથી. કર્મનો એમાં કોઈ રોલ નથી, તારો જ દોષ છે. તત્વ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગ લગાવતો નથી, એમાં કોઈ અન્યનો દોષ નથી. કદાચ પંડિતજીએ ને અત્યારે વર્તમાનમાં એમની આ વિષય લીધો હોત તો એક આ પણ લગાવત. મેં અહીંયા કોટ કર્યું છે. કોઈ એમ કહે કે એ તો જ્ઞાનની યોગ્યતા નિશ્ચિત છે, કયા જ્ઞાને જાણશે ને કોઈને નહીં જાણે. એ તો એ વખતે એની યોગ્યતા હશે તત્વ નિર્ણય કરવાની. અત્યારે ક્રમબદ્ધની બહુ હવા ચાલી ને, તો કોઈ આવી દલીલ કરી શકે? પંડિતજી, એ તો તત્વની નિર્ણય કરવાનો ક્રમ હશે ત્યારે થઈ જશે, એની યોગ્યતા હશે ત્યારે થઈ જશે, હે ને? એ તો એના ક્રમમાં જ થશે. તો એના માટે શું જવાબ આપ્યો આપત ખબર છે? કે તને તો તત્વ નિર્ણય થઈ ગયો છે, હે ને? એમ કહ્યું કે તને તો તત્વનો નિર્ણય થઈ ગયો છે, તને તો ભ્રમ જ ક્યાં છે? અગર જો તું આમ કહે કે એના સ્વકાલમાં એના ક્રમબદ્ધમાં થવાનું છે, તત્વ નિર્ણય તને થઈ ગયો છે,
જ્યારે આ દેવલાલીમાં डॉक्टर साहब આવતા ને, पहले की बात है, बहुत 25-30 साल पहले की, ત્યારે આ વિષય બહુ લેતા है। तो एक उदाहरण આપતા ત્યાં, કોઈને યાદ હોય તો, चिड़िया का उदाहरण देते हो, मैं गुजराती में करता हूँ उसे। तो એ ઉદાહરણ આપતા કે એક ચકલીનું જે બચ્ચું હોય છે ને, તો એને ઉડવાની બહુ ટ્રેનિંગ આપે છે, બહુ ટ્રેનિંગ આપે છે ઉડવા માટેની। પછી ઓલું પૂછે છે વારંવાર કે હવે હું ઉડી શકું છું, હવે હું ઉડી શકું છું? તો ચકલી કહે છે કે હા, હવે તો ઉડી શકે છે, પણ એક વાતની ધ્યાન રાખજે। કઈ? પેલું જે બે પગનું પ્રાણી આવે ને, બે પગનું, કોણ? મનુષ્ય। એ જો નીચે નમે ને, નીચે નમે એટલે પથ્થર લેવા નમે ને, તો તું એલર્ટ થઈ જજે। એટલે એને શું જવાબ આપ્યો? એની માને કહે છે કે મમ્મી, અગર એ એના પોકેટમાં લઈને આવ્યો હોય તો, પથ્થર એના પોકેટમાં લઈને આવ્યો હોય તો એને શું કીધું ખબર છે? હવે આટલું તો મેં પણ નહોતું વિચાર્યું, તું હવે ઉડી શકે છે, તને બધી ખબર છે। આવું ઉદાહરણ આપેલું એ વખતે। હેલો, એવી રીતે અગર જો કોઈ એમ કહે કે ભાઈ તો એના ક્રમમાં થવાની વાત છે ને, તો કે તું ક્રમમાં થવાની વાત છે એ તને ખબર છે, તો તને નિર્ણય છે। અગર તને ક્રમમાં થવાનો નિર્ણય છે તો તને ભ્રમ જ ક્યાં છે પછી? પણ તું ખાલી આ તત્વના નિર્ણયમાં ક્રમ છે એમ કહે છે, પણ દુકાનના કામમાં પણ ક્રમ છે માને છે કે નહીં? લૌકિક કાર્યમાં પણ ક્રમમાં જ છે બધું માને છે કે નહીં? એમ માનીને પર્યાય દૃષ્ટિ તારી છૂટી છે કે નહીં? સ્વભાવ દૃષ્ટિ છે કે નહીં? તું જોઈ લેજે। કદાચ અત્યારનો માહોલ હોત તો આ પ્રશ્ન અહીંયા એડ કર્યો હોત। ખેર, કુલ મળીને પંડિતજી એમ કહે છે કે તત્વ નિર્ણય નથી કરતો એ તો તારો જ દોષ છે, નિર્ણય કરવામાં કોઈ રોકતું નથી। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ગઈકાલે કીધું તો આપણે જનરલ ચર્ચા રોડ પર થતી હોય ને ચર્ચામાં, કે માની લો કે એમાં કોઈ પત્ની પણ કોઈ આપણને એમાં કોઈ વિરોધ નથી કરતી। માનો કે આપણે ટાઈમસર આપણને પત્ની જમવાનું આપી દે, બરાબર ટાઈમસર બધી સેવા કરે, પણ આ કોણ કરે એ વાત નિર્ણય કરવામાં આપણે એને રોકી શકીએ? કોઈ ના રોકી શકે। અને આપણે રોકીએ તો એ રોકાઈ જાય કે ના રોકાઈ જાય? હે ને? બાકી ઓલામાં તો કહી શકીએ ભાઈ તું બ્રેકફાસ્ટ આપીને તું પ્રવચન ના જજે, હા, એમાં તો કદાચ ઘણી બધી બાધાઓ અંતરાય આવી શકે છે, પણ આ પણ એને થવાનો ક્રમ હતો એમ થયું, અને કોણ કરે એ નિર્ણય કરવામાં કોણ રોકે છે? ટૂંકમાં મારે એ બતાવવું છે કે નિર્ણય કરવામાં કોઈ રોકતું નથી, કોઈ રોકટોક નથી, કોઈ બીએમસી ની કોઈ ચાર્જ નથી, બીએમસી ની કોઈ રોકટોક નથી, બરાબર છે? કોઈ નિર્ણય કરવામાં તો કે નિર્ણય નથી કરતો એમાં તો તારો જ દોષ છે, તારો જ પ્રમાદ છે, એમ અહીંયા કહે છે। હવે એક ઓર ફરીથી એના માટે ફેર પ્રશ્ન છે, ફટાફટ લઈ લેશું, થઈ ગયેલા વિષયો છે અને આપણે તો શિબિરનું લગભગ સેકન્ડ લાસ્ટ પ્રવચન છે આ। સમ્યક્ત્વ ચારિત્રનો ઘાતક તો મોહ છે, એટલે તેનો અભાવ થયા વિના મોક્ષનો ઉપાય કેવી રીતે બને? તો વળી પાછો એક પ્રશ્ન ચારિત્ર અને દર્શન મોહને લઈને, ચારિત્ર અને સમ્યક્ત્વને લઈને, તો કેવી રીતે અમારે ભ્રમ દૂર થાય? ફરીથી બહુ સુંદર જવાબ આપે છે, અહીંયા ફાઇનલ જવાબ આપે છે। તત્વ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગ લગાવતો નથી એ તો તારો જ દોષ છે। આનો એટલે તારો જ દોષ છે। પુરુષાર્થ વડે જો તત્વ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગને લગાવે તો સ્વયં જ મોહનો અભાવ થતા સમ્યક્તવાદી રૂપ મોક્ષના ઉપાયનો પુરુષાર્થ બને છે। તેથી મુખ્યપણે તો તત્વ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગ લગાવવાનો પુરુષાર્થ કરવો, અને ઉપદેશ પણ એ જ પુરુષાર્થ કરાવવા અર્થે આપીએ છીએ। કાલ કહ્યું હતું ને, 5 સમવાય છે, 5 સમવાયમાં પુરુષાર્થનો જ ઉપદેશ મુખ્ય છે। ઉપદેશમાં તો પુરુષાર્થની જ મુખ્યતા હોય, અને એટલે કહે કે તું પુરુષાર્થમાં શું કર? તત્વ નિર્ણય કર। હવે જો થોડુંક અંતર બતાવે છે, આ બતાવવું છે મારે, આ તો ચર્ચા થઈ ચૂકી છે। અને ઉપદેશ પણ એ જ પુરુષાર્થ કરાવવા અર્થે આપીએ છીએ। એ પુરુષાર્થથી મોક્ષના ઉપાયનો પુરુષાર્થ સ્વયમેવ થશે। અંદર પાડ્યું ને, ખ્યાલ આવ્યો? પહેલા કહ્યું હતું ને કે ઉપદેશ તો સાંભળે છે પણ પુરુષાર્થ નથી કરતો, એનો અર્થ શું? તત્વ ઉપદેશ છે એ વાસ્તવમાં પુરુષાર્થ નથી, ઉપદેશ સાંભળવો પુરુષાર્થ નથી, એના માધ્યમથી તત્વ નિર્ણય કરવો એ પુરુષાર્થ છે। હવે અહીંયા પાછી બીજી સ્ટેપ આવ્યું, તો કહે છે કે એ પુરુષાર્થથી, એટલે તત્વ નિર્ણયનો પુરુષાર્થથી મોક્ષના ઉપાયનો પુરુષાર્થ સ્વયમેવ થશે। એટલે તત્વ નિર્ણય કરવાનો પુરુષાર્થ અલગ
અને વાસ્તવિક પરમાર્થ પુરુષાર્થ અલગ. આ બેમાં અંતર નાખ્યું પંડિતજી. એટલે તત્વ નિર્ણય કરવાનો પુરુષાર્થ કયો છે? અભ્યાસ રૂપ ભેદ જ્ઞાન. અને આ જે પુરુષાર્થ છે કયો છે? પરિણમન રૂપ ભેદ જ્ઞાન. હવે ખ્યાલ આવે અંતર્યા. એટલે કરવામાં તો તત્વ નિર્ણય એની દ્રઢતા જ કરવાની છે. પેલું સ્વયમેવ થશે, સામાયિકના કાલમાં સ્વયમેવ થશે, સહજ થશે. પણ આ જે છે તત્વ નિર્ણય કરવાનો પુરુષાર્થ, એ કહે છે પેટનો પુરુષાર્થ, જે તમે કાલે પૂછ્યું તે ગર્ભિત શુદ્ધતા. જે પણ કોઈ પ્રસંગો થાય છે, આ ક્યારે ક્યારે કરવાનો? તત્વ નિર્ણય કરવાનો. અને તત્વની નિર્ણય થઈ ગયો હોય એને તત્વ નિર્ણયની દ્રઢતા કરવાનો પુરુષાર્થ બતાવો ક્યારે ક્યારે કરવાનો? જનકભાઈ, ક્યારે કરવાનો? હે? નિરંતર. હે ને? નિરંતર વિચારીને કે વગર વિચારીને? है ना? 250 नंबर नो बोल से सुगाणी जी नो, विचार करके या बिना विचार के इसी का घुलन रहना चाहिए. ये लिखा है इन्होंने. कभी विचार करके करना, कभी विचार के बिना कैसे करेंगे? तत्व निर्णय की दृढ़ता कैसे करेंगे? बस ये माते मिसिंग पॉइंट है अपना जीवन में. है ना? तत्व निर्णय થઈ ગયો એટલા માટે હું વારંવાર લઉં છું બેક ઓફ માઇન્ડમાં, સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જે મતિ જ્ઞાનની જે ધારણા છે ને, એ તો એકમાત્ર ટીચિંગ છે. એ વસ્તુને સંબંધી આપણને ધારણા થઈ ગઈ, અવગ્રહ આવાય ને ધારણા કે આ ફોન છે, આ છે, આ તત્વ છે, આ ફલાણું તત્વ છે, થઈ ગયું. પણ શુદ્ધ જ્ઞાનના માધ્યમથી, નયોના પ્રયોગ દ્વારા, વિશેષ એમાં હિતની મુખ્યતાથી એ પ્રમાણે નિર્ણય કરે, અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ દ્વારા એનો નિર્ણય કરે, અને અનેક પ્રકારના ઉદાહરણોમાં એની સત્યનો પક્ષ લે. એ સત્યનો પક્ષ આવે, એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે. એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એટલે હંમેશા એ ધારણામાં રહે છે, દાઢમાં રાખવાની વાત છે આપણી ભાષામાં. અને કોન્શિયસ માઇન્ડ શું છે? કે ઉપયોગ વર્તે છે, સંસ્કાર પ્રમાણે વર્તે છે, અને આદત છે એટલે આદત પ્રમાણે વર્તશે. જે સત્ય છે એના વિરુદ્ધમાં પ્રવૃત્તિ દેખાશે, એના વિરુદ્ધમાં ઉપયોગ દેખાશે, એના વિરુદ્ધમાં પરિણામ દેખાશે. અને વર્તમાનમાં જે ઉપયોગરૂપ વ્યવસાય છે એમાં તો એ પ્રમાણે દેખાશે. પરંતુ એ વ્યવસાયની અંદર જે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જે ધારણામાં નક્કી કરી રાખેલું છે અને એમાં દ્રઢતા છે, એ દ્રઢતાનું જ પોષણ થાય. એન્ડ ઓફ ધ સીન એનો જ પક્ષ લેવાય. ખ્યાલ આવે? એનો જ પક્ષ લેવાય, એનું જ પોષણ થાય, એનું કહેવાય. એને શું કહેવાય છે? તત્વ નિર્ણયમાં ઉપયોગ લગાયો કહેવાય. વિચારીને કે વગર વિચારી. હવે એમાં થોડું અંતર કરી લઈએ, પછી આગળ વધીએ. આ તો બહુ મોટો વિષય છે. ઘણીવાર મેં આને કલાકો લીધેલું છે સભામાં. હવે એમાં વિચારીને એટલે શું? કે ક્યારેક તો એનો વિચાર કરીને બુદ્ધિપૂર્વક, એ પછી એકેડેમી થઈ ગઈ. એ તો પાછું શિક્ષણ, ચિંતવનનો માર્ગ નથી. આ ચિંતવનની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી છે, મને ખબર છે. ચિંતવનથી એક સ્ટેપ આગળની વાત છે. કે વારંવાર ચિંતવન નહીં થાય, पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है ना. ये हेडेक हो जाएगा. आप रोटी बनाते बनाते है ना, अपने उपादान से होता है, इसमें मैं तो निमित्त हूँ. तो ये ऐसा जो चिंतवन की बात गई, तो पंडित जी ने चिंतवन कहा ना, विवेक जी ने, ये वाली चिंतवन नहीं, एहसास में आना चाहिए, पक्ष में आना चाहिए. ऐसा चिंतन हो नहीं पाएगा. देखो, उपयोग तो कहीं भी लगे, कहीं भी आने अपने उदयगत प्रसंगों में लगेगा, जो उदय है उसमें लगेगा. ऐसा है. आपको अगर 6 घंटे में से अब हम कम करके 1 घंटा कर देंगे ना, तो आप 5 घंटा चिंतन करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है. बहुत पंचायत है हमारे पास, इसलिए ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना. ये भी डर लगता है कि नहीं अपन थोड़ा रिलीज करें, एक ही सुबह में रखे, एक शाम में रखे, बॉम्बे की तरह, तो बाकी के घंटे में क्या करेंगे लोग, है ना. अब लाइट बंद रखनी पड़ेगी. नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पास उस प्रकार की आदत नहीं है. बड़े बड़े विद्वानों के पास नहीं हो सकता. आप तो छोड़ो, श्रोताओं की तो बात छोड़ो, हो ही नहीं सकता. हम सबको अपने जीवन से पता चलता है, नहीं हो सकता. हो नहीं सकता कि उपयोग ऐसा लग नहीं सकता. मगर निर्णय किया हुआ हो और उस निर्णय के हमने वो धारणा में बिठाया हो, यानी उसका पक्ष हमारे आ गया हो, उस सत्य हमें भाग गई हो, सत्यता हमें भाग गई हो, और भाग गई हो उसमें पूरा उपाय लगाना है, बराबर युक्ति से, उदाहरण से और लॉजिक से, न्याय से. सारी बात हमें वो एक बार बात हो गई, तब वो लग गई हमारे, है ना, वो भाग गई चीजें. और बाद में जब उपयोग कहीं भी लगता हो, तो उस चीज में, उसके विरुद्ध में होने वाले कषाय
कषाय में दुख है, सबको पता है। पता क्या, हमें तो उस कषाय में दुख है वो वास्तव में हमें हमारी धारणा में बैठ गया है ना, इसलिए हम कषाय की फेवर में है ही नहीं। कषाय होती है वो बात अलग है, हम फेवर में नहीं है। अब कषाय तो होती ही है, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो। तो उस कषाय की प्रवृत्ति में उपयोग तो एक समय एक में ही लग रहा है, उस समय विचार करने जावे ऐसा नहीं हो सकता, कषाय में लग रही है। बिना विचारे भी एहसास में यहाँ रहने लायक नहीं है, ऐसी फीलिंग्स रहे, उसी पे ऑब्जर्वेशन आपको करना है। दैट्स अ पॉइंट, ये मिसिंग पॉइंट है हमारे जीवन में। ये नहीं होता क्योंकि विचार करने बैठ नहीं सकता, अलग से बैठेगा तो 2 मिनट में उड़ जाएगा, हो ही नहीं सकता। वो देखना विवेक जी, नहीं हो सकता ऐसा। अब सोचना एक बार बैठ के, सोच, नहीं हो सकता। मैं आप श्रोताओं की बात नहीं करता हूँ, ये जो हम लोग ये आपको 6-6 घंटा सब पढ़ाते हैं और घर में भी पढ़ते हैं, हमारी बात कर रहा हूँ। नहीं हो सकता है, इसलिए फिर आम आदमी को कैसे होना है? जिसने जीवन इसमें लगा है वो नहीं हो सकता। आपको पता है सम्यक दृष्टि को भी नहीं हो सकता। छोड़ो दूसरे की, आने वाला है इसमें, थोड़ी धीरज रखना, नहीं हो सकता है। उसके तो प्रतीति है, परिणति है उसके पास, तो भी उलझ जाता है राजपाट में, नहीं हो सकता वो। इसीलिए देखो, अब मैं ट्रेनिंग सही दे रहा हूं आप, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। मैं बोला नहीं, आप तो करते रहना, 2 मिनट करोगे वापस जैसे कि वैसे हो जाओगे, नहीं हो सकता। विचार शक्ति में इतना नहीं चल सकता कषाय तो, मगर ये आपको एहसास में आ जाएगा। आपने ये ट्राई किया होगा, आपने ये मेहनत करी होगी। ये तत्व निर्णय बहुत बड़ी चीज है, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया पंडित जी। निर्णय का अर्थ क्या, वो ज्ञान, निर्णय ज्ञान की पर्याय है ना, तो मात्र ज्ञान की बात नहीं है इसमें। श्रद्धा के साथ है, भरोसा के साथ है, वलन के साथ है, वलन पूर्वक निर्णय की बात है, ऐसा गुरुदेव जी ने रहस्य पुण्य तिथि में लिखा। तो हमें पता चल गया, देखो हमें पता चल गया कि राग का इरादा ठीक नहीं होता, ये हमें पता चल गया है। अभी वो राग आवे उसको हम रोक नहीं सकते। राग करना कि नहीं करना जैन शासन का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये करना कि नहीं करना। जो आवे वो क्या है और मैं क्या हूं, उस निर्णय में तुम लग सकते हो, मरे नहीं करना ये करना, ये जैन शासन को एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मंदिर में शुभ भाव करना, क्या शुभ भाव करना जैन, आप करके देखिए। आपको मंदिर में अशुभ भाव नहीं आया हो तो बस एक आदमी हाथ ऊंचा करे कि हमें अशुभ आता ही नहीं मंदिर, तो क्या अशुभ करने चाहिए यहाँ पे? तो क्यों करते हो? अब क्या करोगे उसको, है ना? देखने वाले से पहले, जो हमें देखने वाले का दर्शन करना है ना, उससे पहले उसकी जो भूमि रेडी करनी है ना, उसकी बात है। भेद ज्ञान की भूमि पे वास्तव में देव दर्शन, भगवान आत्मा के दर्शन होते, अभेद के दर्शन होते। ये सारी बातें आ रही है सर। देखो आज तक ये मिसिंग पॉइंट रहा राकेश, क्यों नहीं हुआ? मैंने बहुत इसमें रिसर्च किया है, बहुत बार प्रयास किया है, बैठ के किया है, उठ के किया है, दौड़ के किया है ना, बहुत कुछ आंखें बंद करके किया है, खोल कर किया है, सब कुछ करके किया है। प्रयास तो करते ही है, जब पहले की भूमिका में सब कुछ किया। बोला यार ये तो कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं उपयुक्त दौड़ जाता है, दिल्ली दौड़ जाता है, पार्टी में चला जाता है, ऐसा। और उस समय वो थपाट लगी हो तो फिर मन ही नहीं लगता। आज तक मैं किसी भी, हमारे जितने भी श्रोता है, उसकी हॉस्पिटल में खबर देखने गया हो तो उसका एक पहला ये होता है प्रश्न कि भाई वहां तो बहुत समझ में आता है, यहाँ तो याद ही नहीं आता। ये सबसे पहले मुझे तो सुनाते ही है। आपने जहां सुनाते हो वहां तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जब ये बीमार पड़ते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ से नस निकालते हैं, उस समय सब भूल गए। अभी की बात है, अभी की, ये अर्पित के पिताजी की हुआ ना, फादर इन लोग की खबर देखने गया, और शाम रात को तो शिविर से आए हैं, पूरे भेद ज्ञान की 2.5 घंटे की मेहनत करके। सुबह में ऑपरेशन हुआ, मैं दूसरे दिन मिलने गया, तो भाई ऐसा हुआ कि उस समय थोड़े काल तो सही रहा, वेद ज्ञान करते रहे, विचार करते रहे, ये करते रहे। बाद में जब यहाँ से नस कुछ निकालनी थी, वो खींची तो सब भूल गए, और ऐसा लगा कि वो सहन नहीं हुआ। मैंने बोला उस समय तुमने ये प्रयास किया, मैं फेल हो गया, ऐसा बोले वो। फेल हो गया ने मैं विचार ही नहीं कर पाया, तो ना विचार नहीं कर सकते तुम क्या, कोई नहीं कर सकता। हमें निर्णय क्या करना था कि ये शरीर में आसक्ति है, ये आसक्ति है, ये जो ये आपको ये बहुत दर्द हो रहा है और तत्व विचार तक की भी उपयोग नहीं बनता, इतनी मुझे आसक्ति है। अरे ये तो आसक्ति है, इसका अर्थ हो गया कि आप आराधना में हो।
आपका भेद ज्ञान चालू, आसक्ति है एक आत्मा की वस्तु नहीं है, उसके साथ में हो रहा है, दोनों एक साथ होते हैं बातें। उपयोग में भले ऐसा उपयोग में नहीं आवे तब भी फील करो कि इतनी आसक्ति बहुत है मुझे, बिना विचारे भी आसक्ति का एहसास हो, तो आसक्ति का आसक्ति रूप से एहसास होना ये वास्तव में आराधना है, ये आपके वेद ज्ञान है, आपके निर्णय की पुष्टता है। ऐसे जाना है, आपको हाथ कुछ नहीं लगेगा, सब बड़े बड़े लोग डिप्रेशन में आ जाते, ऐसा है। इंदौर वाले पंडित जी को यही हुआ था, इतना समझाते थे हमें आके, इतनी तो वेद ज्ञान कोई नहीं समझाता, डिस्टर्ब हो गए बहुत। मुझे ख्याल में था कि मात्र क्षौक्षम के बेज पर, मात्र चिंतन के बेज पर तुमने कुछ मान लिया है और उससे कुछ उपलब्धि नहीं होती, इसलिए पंडित जी ने निर्णय वाला शब्द डाला। आप सोचना भाई, मैं तो एक इसमें से जो मुझे ख्याल में आ रहा है ना, वो आपको गुरुदेव सिंह के प्रवचन से बहुत कुछ मैच किया है। नहीं, श्रद्धा तो शुद्धोपयोगના કાળમાં सम्यक થશે, ना ना, तत्व निर्णय तो ये प्रोसेस में सम्यक सन्मुख परिणति। इनका प्रश्न है कि तत्व निर्णय हो गया तो हम इसको सम्यक दर्शन मान लेंगे, कि बिल्कुल नहीं माने। सम्यक दर्शन की दिशा में आपका विशेष उपाय है, अनेक प्रकार से आपकी उस दिशा में प्रयास है। सम्यक दर्शन प्रयास ने तत्व निर्णय कहे। नहीं, मानने में तो जब माना तब कहलाएगा कि आप निर्विकल्प होकर वो शुद्धोपयोग कर ले, तब माना कहलाएगा। देखो मैं इसका भी समाधान कर देता हूं, है ना। आप बैठना, आप 6 बजे तक मुझे बोला गया है, ठीक है। देखिए आप ये जैसे है कि ये कह रहे हैं कि वो फिर वो क्या अंतर है, जब सम्यक मानना और निर्णय करने में क्या अंतर है। तो मानना तब माना जाएगा, मानना है ना प्रतीति श्रद्धा, तो ओरिजिनल पुरुषार्थ है, ये उपाय है ना, ये पुरुषार्थ ही मोक्षना उपाय नो पुरुषार्थ स्वयं थाय थे, वो वाला पुरुषार्थ है। तो वो तो तब माना जाएगा, पूरी प्रोसेस है, अभी पता नहीं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। मेरे एक ये प्रोसेस क्या है कि ये उपाय, ये जो निर्विकल्प होगा, वस्तु कैसी है, निर्विकल्प। वस्तु में विकल्प की कोई मोहताज नहीं है ना, वो हम सब कहते हैं, सब मानते हैं, सारे विद्वानों ने बताया कि वस्तु परिपूर्ण ये है, विकल्प करने की कोई मतलब नहीं है, विकल्प का मोहताज नहीं है, सब है, ठीक है। अब ये और कषाय कैसी है, आकुलतामयी है, और कोई पदार्थ में कोई कर्तव्य हमारा बनता ही नहीं, हमारे पास कोई किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं, और हमारी जिम्मेदारी किसी को है ही नहीं। ये सारी बातें हमने हमारे बैक ऑफ माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हमने युक्ति से, प्रयोग से, है ना, उसकी सिद्धि करके ये वहां तक ये सिद्धि करी, समझ में आया बात में, सही है। 1000 काम करते हैं, एक भी काम हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, इसका अर्थ हुआ कि हमारे विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होने का नियम है। ऐसे हमने सिद्धि करी अपने जीवन से, प्रबल युक्ति से, निर्बल युक्ति नहीं। निर्बल युक्ति सामान्य अर्थ करता हूं, बहुत बड़े बड़े अर्थ है। निर्बल युक्ति यानी जो शास्त्र के उदाहरण है वो निर्बल युक्ति है, अपने जीवन के उदाहरण से वो प्रबल युक्ति है, ऐसा भी एक अर्थ है अध्यात्म में। तो ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि फिर अंतर क्या है, तो अंतर इतना पड़ा कि अभी आपने वो प्रतीति सम्यक नहीं हुई है, वो प्रतीति का आप पोषण कर रहे हो, उस संबंधी उस प्रकार के वो जो मान्यता है उसका पोषण कर रहे हो, अभी भी वो मान्यता छूटी नहीं है। छूटी कब कहलाएगी, जब वस्तु निर्विकल्प है, जब कषाय दुख रूप है, तो अंतर्व्रत काल ऐसा कोई निष्कषाय होकर, निर्विकल्प होकर, है ना, उसका स्वाद ले लेवे, तब वस्तु का वह निर्णय जो उस निर्णय की दृढ़ता जो पोषण कर रहे थे, तब जाके वह प्रतीति सम्यक कहलाएगी, उससे पहले सम्यक नहीं कहलाएगी। ये बात है, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। देखो ये अनेक प्रकार से, ये जो हमने निर्णय करा, थोड़ा ले ही लेते हैं 5 मिनट, प्रश्न बहुत होते हैं, आपको कई बार समझाने के बाद भी प्रश्न हुए हैं, फिर से मैं एक बार ले लेता हूं कि जैसे आपने निर्णय का सारा निर्णय कर लिया कि नहीं, वो राग में कभी कषाय में सुख होता ही नहीं। अब कषाय आएगी कि नहीं आई, तीव्र आई, ऐसा निर्णय करने पर भी तीव्र आई, आ सकती कि नहीं आ सकती। अरे सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण निश्चय तक होती है, इसलिए कषायों का बहुत आ जाना, तीव्र आना, मंद आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कषायों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कषायों के रस में गड़बड़ है। अब कषाय बहुत आई, पंडित जी सुनने बराबर, कषाय तीव्र आ गई है ना, लड़ते हुए देखा गया, है ना, लड़ाई भी हो गई। अब एक कषाय हुई,
मगर कषाय में आकुलता है। वो हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने ये मान रखा है ने कौन सा निर्णय, विश्वास के साथ, वलन के साथ मान रखा है कि ये इसके इसके इसमें सुख हो ही नहीं सकता, इसके अभाव में सुख होगा, स्वभाव का वलन है और इसकी फेवर हमारे पास नहीं है। ये श्रद्धागत चर्चाएं लेनी है, यहाँ परिणामों में मिट जाने वाली बात समय सार में है ही नहीं। कषाय के अभाव की बात समय सार की नहीं है, कषाय की दृष्टि छोड़ने की बात समय सार की है, और कषाय रहित होने की बात मुख्य रूप से नियम सार में। व्यवहार रत्न के परिहार अर्थ वो उतनी कषाय भी नहीं चलेगी अगर मुक्ति के मार्ग का विकास करना हो तो। ऐसा है, प्रमुखता है, बात सब आएगी दोनों ग्रंथों में, ठीक है। अब वो आगे बढ़ा, ये तो प्योर जीवन है। आपके जीवन में कई बातें आई, कई आई, आपने घर में लड़ाई कर दी कि हम नौकर के साथ, आपको बोला था कि ये काम सौंपा था, हम 4 दिन जा रहे हैं शिविर में, आपको सौंप के गया था, पैसे भी दे के गया था, बिल भरना था, ये करना था, है ना, ये सब करना था, आपने कुछ किया ही नहीं। अब क्या पढ़ के आया है? क्रमबद्ध पढ़ के आया कि क्रमबद्ध जो कार्य होगा वो क्रमबद्ध में ही होगा, और सारा उसका जो संस्कार है क्रमबद्ध के विरुद्ध में प्रवृत्ति कर रहा है। करेगा कि नहीं करेगा? कि वो यहाँ बोलेगे ठीक है बेटा, नहीं भरा तो हमें पता है वो क्रमबद्ध में ही होना है, तो इसलिए पैसा नहीं भरा है, ऐसा कुछ कहता है कोई? सम्यक दृष्टि भी नहीं कहेगा, है ना। ऐसा है। अब शिविर की पूर्णाहुति आ रही है, अब आपने बहुत बड़ी बात छेड़ दी है, रात्रि में बैठ जाना मेरे साथ 2 घंटा सारा, यहाँ पे खुलासा हो जाएगा, फिर भी ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि अब वो आगे बढ़ा कि ठीक है साहब इतना, क्योंकि वो तो आदत है, आदत ने अब दानत सुधरी है, थोड़ी सी गई नहीं है दानत, दानत है वो मिथ्यात्व का दोष है, आदत है वो चारित्र का दोष है। अभी कहा कि ये भी देखो उपयोग में तो हुई है, तुझे करना ही है, और ये सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं होने देता, एक्सेप्टेंस नहीं आता, वहां रिलीज नहीं होता उसका ये इस प्रकार से, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जो है कि कौन करे, बिना विचारे भी उसका प्रभाव रहता है। व्यक्त में यानी ग्रंथि भेद नहीं हुआ है इसलिए अप्रगट, मगर उस समय उस पर्याय में हाजिर है वो चीज, उपयोग रूप में ही काम हो रहा है ऐसा मत समझना कभी भी, बिना उपयोग रूप भी काम हो रहा है। हम तो सिर्फ उपयोग रूप को ही देखते हैं, उपयोग रूप तो व्यस्त है, संस्कार तो व्यस्त है, कॉन्शियस माइंड तो लगा है कहीं क्रमबद्ध पर्याय के विरुद्ध में, और सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो पकड़ के रखता है कि नहीं कैसे हो सकता, मैं तो बोल के कह रहा हूं, बोल के नहीं महसूस होता। तो क्या होगा कि उस कषाय में इतना जोर से बोलते हुए भी वो पकड़ वाली डेप्थ नहीं होगी, वो पकड़ वाली डेप्थ नहीं होगी ना, वो उसकी आराधना है, वो एहसास की बात है। जैन शासन एहसास महसूस होता है, प्रतीत होता है, अनुभूति का मार्ग है ये, चिंतवन तक कोई अनुभूति नहीं होती, चिंतवन तक जो संतुष्टि हो गई ना तो कुछ नहीं होगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा ये है। एहसास तक नहीं गया तो चिंतवन तक के निर्णय में संतुष्ट हो जाने का पूरा स्कोप है, मिठास है वो। ख्याल में कल्पेश भाई ने क्या पूछा? अब चिंतवन में तो निर्णय ही करेगा ना, पर निर्णय करेगा मगर निर्णय का पोषण नहीं कर रहा है मान लो, तो फिर वो उसी में संतुष्ट हो जाएगा। ये निरंतर है ही, नहीं तो क्यों लिखते सोगानी जी, विचारे या बिना विचारे भी इसका ही पक्ष वलन बनते जाना चाहिए। तो ये है और होता है कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि भी ये अभी कोई लोग ऐसा पूछते हैं उस समय हमें नहीं होता, उस समय ये भी आप बोल रहे हैं ऐसा भी नहीं होता, तो उनको मैं बोलता हूं कि जब विचार आवे तब नक्की करना, पर एक ये नक्की करने की प्रोसेस में, निर्णय के प्रोसेस में, पोषण करने की प्रोसेस में जिस दिन आओगे तो एक दिन ऐसा अचीवमेंट होगा कि क्रोध चलता होने के काल में भी, क्रोध चल रहा है उस काल में भी, है ना, एक करने लायक नहीं है वाला पक्ष तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता है वो मोह तब भी गल रहा है और दिख रही कषाय, ये आराधना होती, इसे विज्ञान कहते हैं। हाँ, अभ्यास विज्ञान होगा, यही तो अभ्यास में आया ना, अभ्यास में आया। क्रोध नहीं होना वो नहीं है, क्रोध कर्तव्य नहीं है वो वाली बात है, वो पंचलाइन है अपनी यार, करने लायक नहीं, यानी फेवर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही फेवर? क्रोध तो खूब हुआ है ना, बच्चे भी बोलते हैं, इतना सुनते हो सुनाते हो फिर भी क्रोध करते हो,
थैंक्स कह देना। ये भी चाहता है कि मुझे क्रोध नहीं हो, गुणस्थान समझाने मत बैठ जाना। ये इतने गुणस्थान तक क्रोध रहता है, पंडिताई नहीं चलेगी, है ना, पंडिताई इधर चलेगी, है ना, वो आत्मानुभूति में पंडिताई नहीं चलती। ठीक है अमन जी, सही है। ऐसा है, देखो तो बाद में वो आगे बढ़ रहा है। ये सब कुछ कर्मबद्ध पर्याय वाले में मौका उसने बराबर, वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में, एक कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देता है। ध्यान देना, सरेंडर करता है, उसका आउटकम क्या है कि उसे उसमें उसकी लंबाई नहीं होती, वो कसाय की लेट गो वृत्ति आ जाती है। यानी समझ लो कि उस कसाय के जो वो फेवर में खड़ा नहीं रहता, उसके फेवर में खड़ा नहीं रहता, तो वो वाला काम उसका चालू है। तो ये जीवन में इसकी बहुत इसका अभ्यास बढ़ जावे, फिर बाद में तीसरा स्टेप है परिणाम रूप व्यक्ति। अभी बोल ही देता हूं, है ना, एक बता ही देता हूं, नहीं तो वो आधा काम हो जाएगा ऐसा। इसके बाद ये तो आगम आश्रित वेद ज्ञान तो हो गया पंडित जी, वो तो एकेडमी है। आगम आश्रित वेद ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन सबके पास सही है, इंफॉर्मेटिव ज्ञान तो सबके पास सही है। गुरुदेव जी ऐसा कहते हैं, ज्ञान तो तारू चोखू है, ऐसा बोलते थे, आता उनके प्रवचन, तारू ज्ञान ચોખ્ખું છે, પણ કહીને પછી આ બધું કહેતા નિર્ણય થયો છે, નિર્ણય થયો હોય તો નિર્ણયનું પોષણ ચાલુ છે, એનો પક્ષ એનું વલણ આવે છે, કસાયના કાલમાં કસાયનું વલણ આવે છે। अरे इतनी तो कसाय होगी ना, ज्ञानियों की भी होती है ना, गया वो कसाय की फेवर में चला है। अरे ज्ञानियों की भी कसाय होती, मुनि राजों को भी लड़ते हुए देखे, और जोड़ देगा, पीछे से लड़ते हुए देखे, ऐसा बोल देगा। देखा है ना सब सीन, तो सब हमने भी देखे। तो सारी बातें खत्म हो गई। तो ये ऐसा नहीं है साहब, कसाय तो हो रही है, मगर एक कसाय है वो दुखदायक है, वो फीलिंग्स में आती है, यानी एक कर्तव्य नहीं है, वो फील रहता है, एहसास रहता है, महसूस होता है। तो वो जो कसाय शक्ति है ना, उपादेय बुद्धि वाली शक्ति, वो डाउन हो, कमजोर पड़ जाती है। जो कल कसाय आवे और आज कसाय आवे, उसमें जो पकड़ ठंडी पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, वो फीलिंग्स में आएगी, बोल के कुछ नहीं होगा, वो आपके फीलिंग्स में आ सकती है। और लोग बोलते हैं पहला थी बहु फरक पड़ी गयो, शू फरक पड़ी गयो है, આપણે પહેલા જ્યારે તત્વ અભ્યાસ નતો અને અત્યારે બહુ ફરક પડી ગયો। શું ફરક પડી ગયો પરેશભાઈ? ફરક એ પડી ગયો કે કસાયમાં રહેવું ફાવતું નથી। વેરી ગુડ, कसाय में रहना पसंद नहीं आता साहब, कसाय तो होती है मगर उसमें रहना पसंद नहीं है। ये तुम्हारी जीत है, ये तुम्हारी आराधना है, पेट की आराधना है। गर्भित सुप्ता में श्रद्धा काम कर रही है, आकार ले रही है ना, वास्तव में केड़वणी चालू है, ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा है। अगर इस प्रकार से ऐसा वो उसमें इतनी तारतम्यता आ जावे, इतनी क्वालिटी बन जावे, फिर वह उसे कहीं भी जावे, फिर बच्चे बोलते हैं कि चलो पापा आप तो हमारे साथ हिल स्टेशन चलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे सम्यक दृष्टि है तो भी जाएगा। अभी साथ में ये भी बोल देता हूं, तो ये सम्यक दृष्टि को बीच में लाना नहीं है, वो क्या क्या कर सकता है नहीं कर सकता है वो फिर देखेंगे। सम्यक स्वरूप से ना त्यारे जोश, जिसको चौथा गुणस्थान समझ में आ जाएगा उसको धर्म समझ में आ जाएगा, है ना, ऐसा है। तो वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, शादियों में जाएगा, उसकी भूमिका के विरुद्ध कार्य नहीं है, उस भूमिका में होने लायक कार्य। हो सकता है किसी की मंदता हो तो नहीं भी हो इतना परिणाम। गुरुदेव श्री ने व्यापार नहीं किया दिगंबर जैन धर्म अपनाने में, और उनकी भूमिका में अगर व्यापार कर लेते तो व्यापार की उस भूमिका के विरुद्ध कार्य नहीं था। वो व्यापार का कार्य, व्यापार की कसाय का अभाव 8वीं प्रतिमा में होता है। उससे पहला वो इतनी मंदता थी कि व्यापार की प्रवृत्ति का परिणाम ही नहीं आया, पर व्यापार करने की कसाय का अभाव गुरुदेव श्री को उस भूमिका में नहीं था। हो ही नहीं सकता है, वो नहीं करे तो नहीं करे, क्योंकि इतनी मंदता थी भाई साहब कि उनको ये नहीं था, परिणाम नहीं आ रहा, मगर कसाय का अभाव नहीं था। हाँ, उपादेय बुद्धि नहीं थी, है ना। कसाय इतनी मंद पड़ गई थी कि वो प्रवृत्ति तक पहुंचे, यानी इतनी कसाय नहीं थी। अभी आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ता है, और फिर वो गया तो वहां देखा कि यार यहीं भी तो 6 द्रव्य है, यहाँ भी कोई सुख का कोई है ही नहीं, उसका प्रयोजन सदता हुआ नहीं दिखा। बाद में वो भी निर्णय करता है कि मुझे तो मेरे साथ रहना चाहिए, मुझे अपने साथ रहना चाहिए।
मुझे अपने से मिलना चाहिए। वास्तव में वो तब यानी मुझे फिर उस अपने से मिलने का अर्थ क्या है? सामायिक। वो सामायिक में बैठने की तैयारी करता है, ऐसा है। अब सामायिक में योग्य काल में बैठता है। योग्य काल कौन सा? सुबह का कि शाम का या रात का? योग्य काल यानी उसके अपने जीवन में जो प्रवृत्ति कषायों में व्यस्त रहने की कमिटमेंट की है, उस समय में सामायिक करने नहीं बैठना चाहिए। अब मान लो कि तुमने 10 बजे ड्यूटी लगी है तुम्हारी, तो 10 बजे मैं तो सामायिक में बैठ जाता हूं, और उस समय में भी सामायिक में बैठ जाओ, ऐसी तुम्हारी वो योग्यता अभी नहीं है। वो अलग बात है, वो आगे आएगी। क्योंकि तुम बैठोगे ना तो भी उधर उपयोग रहेगा, तुम बैठ नहीं पाओगे। माँ बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, नहीं नहीं ठहरो मैं सामायिक करके आता हूं, मेरा नियम है। ऐसा नहीं होता सामायिक। तो ऐसे काल में बैठना कि जो हमने हमारे कषाय के प्रोग्राम उस समय व्यस्त नहीं रखे हो, ऐसे समय में बैठने का अर्थ है योग्य काल में। मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त सुबह में कहते हैं, है ना। अभी तो क्या है, अमेरिका से बिजनेस करता हो तो रात को ही बिजनेस होता है ना भाई अशोक भाई। रात को करते हो कि दिन को? अरे दिन को भी रात को भी 24 घंटा इनके बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको पता नहीं है ना। 2-4 करोड़ ले लेना दान में, 11,000 क्या लिखाते हो? ये भी बोल दिया। अरे 24 घंटा इनके तो रात्रि में माने अमेरिका से फोन आते, ईमेल आते। अब उस सामायिक में नहीं बैठ पाएगा। सामायिक में बैठना है तो उसमें मर्यादा लाना पड़ेगा। शो में देख लेना, मैं आपकी राह देखता था स्वाध्याय में। मित्र है हमारे खास, और भाई है, सगे है, बड़े है, सब कुछ है। क्या हुआ पंडित जी? मुझे बोलिए ना, हम तो कहाँ है स्वाध्याय, हम तो बातें कर रहे हैं। बताइए कोई खास? हाँ वही MP वाले साहब आया ख्याल में। तो ये उस समय बैठना, और फिर उस सामायिक पाठ को आज तक हमने सामायिक मान लिया था। वो सामायिक पाठ सामायिक नहीं है ना। सामायिक पाठ इसलिए किया जाता है कि कोई स्थूल उपयोग हो तो समेटने के लिए होता है। यदि आपको सामायिक, अच्छा किसी मेरे जैसा व्यक्ति को सामायिक पाठ आता ही नहीं हो तो क्या करेगा? मुझे ये वास्तव में नहीं आता, मुझे बहुत मेमोरी बहुत लॉस हो रही है। आप 24 तीर्थंकर के चिन्ह पूछ लो, नहीं आएगा, है ना। फिर भी वो पूरी जो हमारे 150 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसका नेतृत्व करता हूँ। ऐसा है, कभी पूछ ले तो तकलीफ हो जाए, नहीं पूछते। बोला गया पंडित जी को नहीं पूछना चाहिए, पंडित जी पूछ सकते हैं। ऐसा है, पोल खोल देता हूं मैं आपकी, हमारी कुछ नहीं है दम इसमें, मगर है सो है। तो नमोकार मंत्र स्वाभाविक है। सुबह उठते तो पंच परमेष्टि याद आते हैं। तो जब अपना इतना बड़ा काम का मंगलाचरण करने जावे तो पंच परमेष्टि सहज याद आते हैं, है ना। और उसको आप बुद्धिपूर्वक में डालना हो तो डालो, पर अबुद्धिपूर्वक याद आते ही है। तो आपका सामायिक का मंगलाचरण हो गया। इससे सबसे पहले है ना, क्या होता है सबसे पहले? प्रतिक्रमण। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में आप लोग? है कन्फेशन? नहीं कन्फेशन है, पता नहीं, भूल गया मैं। सबसे पहले हमारा जो भी है वो प्रतिक्रमण होना चाहिए, ऐसा है। कन्फेशन बोलते हैं, कन्फेशन जो भी है, तो सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि जब तक भूमि मृदु नहीं बनती ना, तब तक ये आत्मा की दृष्टि नहीं हो सकती। दिन भर कषाय करी है ना, भले वो सामने व्यक्ति हो या नहीं हो, है ना। सामने क्या स्वर्ग में पहुंच गया हो तो भी उसको ज्ञान में लेकर अपने कई बातें, अपने परिणाम बिगाड़े हुए। तो सबसे पहले ये कन्फेशन सबसे पहले होता है। तो कैसे होता है कि अरे ये जो कषाय हुई, इतनी कषाय हो गई है, और एक कषाय के में तो आकुलता होती है। मैं तो बोल के कह रहा हूं, शायद विचार भी करे, पर विचार करते करते उसको एहसास महसूस होता है कि कषाय करने लायक नहीं हो। महसूस का ही मार्ग है, महसूस होता है तो जैसे की नहीं है ना, ऐसा उसको भाषित होता है। जो चीज करनी नहीं होती और हो जाए वो क्षम्य होती है। आपको लाइन में क्यू में धक्का लग जाए ना, किसी का कोई लग जाए लाइन में, क्यू में धक्का लग गया, तो आप सॉरी कह दो उसको, तो क्या बोला, कोई बात नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से लगाओगे धक्का। यानी हमें पता है कि आपका इरादा नहीं था, यानी एक क्षम्य होता है। यानी कषाय के वश तो हो जाता हूं, और कषाय करने योग्य नहीं थी, वो बात की मुझे बहुत फेवर थी, है ना। तो उस फिर वो कषायों में
प्रतिक्रमण हो जाता है, कन्फेशन होता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद सुनना, अभी इसके कषाय के अभाव में क्या हो स्वभाव, तो स्वभाव का पक्ष बिना विचारे भी एहसास में चलता है, स्वभाव का पक्ष बना रहता है। और उस समय इतना भी अंतर्जल्प, इसको अंतर्जल्प बोलते हैं, जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान है वो भी विकल्प है, पर आत्मलक्ष्य विकल्प है, सूक्ष्म विकल्प है, अंतर्जल्प विकल्प है। वो जब जिस दिन बोझा लगे जिस समय, तो समझ लो कि आपको शुद्धोपयोग की पात्रता है। बोझा लगे यानी इसमें भी इतना रहना नहीं परवड़े, ऐसी आपकी फील हो कि अभी हमें अपनी मुलाकात की उसमें बहुत लगन हो, ये इसकी आप फील होता है, फीलिंग का मार्ग है। और फिर कुछ काल में है ना, बाकी सब करना नहीं, तो हमने समझाया था कल, जो भी होता है कर्म में अफड़ा तफड़ी, तो इस समय जो है ना थम जाता है, क्या मोह का आना थम जाता है, उपशम हो जाता है, और यहाँ शांति मिल जाती है। ये कहते हैं कि वह जो शुद्धोपयोग हुआ, निर्विकल्प हुआ, निष्कषाय हुआ, तो उसकी जितनी भी सोच थी, जितनी भी उसने अपने उसमें सबकॉन्शियस माइंड में मान रखा था कि कषाय दुख रूप है, तो वो कषाय रहित तो होकर अंतर्मुहूर्त काल उसने सुख का स्वाद ले लिया। तो उसका जितना भी व्यवहार था, उसका वो व्यवहार जो सम्यक्त्व की मैटर थी, वो प्रतीति हो गई, सम्यक प्रतीति हो गई, अर्थात तो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। ये पूरी मैंने तो बहुत शॉर्ट में समझाया है, मैंने इसके कई घंटों कहीं कहीं मैंने लिया है इसका, पूरे एक उदाहरण लेके, तो ये हो सकता है। ये सब मिसिंग पॉइंट अपने जीवन में रहा। देखो अब हमारे पास मैटर बहुत है, हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना ये है। देखो मैं नहीं कह रहा चिंतन आदि उसके पूर्व में यही होगा, और क्या होगा इसके अलावा, मरे हमारे गृहस्थ जीवन में हम कहे कि 2 घंटा मिला तो मैं चिंतन करने बैठ जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे यहां नहीं हो सकता। यहां अगर हम दोनों मिल जावे ना पंडित जी, तो 15 मिनट, हम रजनी में हम लोग आए थे ना लास्ट ईयर, तो वो हम लंच के लिए बैठते थे, फिर 2 घंटा बैठ जाते थे, दौड़ना पड़ता था प्रवचन में। 15 मिनट तत्व की बात चले, 15 मिनट सामाजिक बात चले, 15 मिनट उनके जो क्या करते हैं वो प्रतिष्ठा आदि, उनकी कुछ सुनावे, उनकी महिमा बतावे, और धीरे 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 निंदा पे भी आ जावे, अरे इनका उनकी बात मत करो यार, वो नहीं है सही, अब आ जावे, अब करो वेद ज्ञान, अब करो चिंतन। नहीं हो सकता था, है ना, खुला नहीं बोलना चाहिए ऐसा। घर में डांटते हैं मुझे लोग कि आप खुला क्यों बोलते हो, क्या हाँ, समझ आया, ऐसा है, होता कि नहीं पंडित। आप दोनों देखो, पहले तत्व की बात करेंगे, फिर जीव विपाकी पुद्गल विपाकी देखेंगे, फिर धीरे 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 धीरे, वो अपनी आदत है ना, संस्कार है, सम्यक दर्शन हो ना हम दोनों को तब भी, ऐसा नहीं है। तो अभी उनकी तो प्रतीति है ना, उनको तो उसमें उपादेय बुद्धि है ही नहीं, पर हमें वो प्रतीति नहीं है, तो हमारे पास साधन क्या रह गया, तो हमने निर्णय किया है यार ये जो भी है कषाय बहुत हो गई पंडित जी, आकुलता होती है। अब ये बोल नहीं रहा हूं मैं, है ना, हम छूटे पढ़ते पढ़ते वो फीलिंग करते हैं यार आकुलता होता कि नहीं। प्रैक्टिकल अभी की बात कह रहा हूं, अभी शाम की सुबह की हमारी, ओपन कर सकते हैं विवेक जी, ठीक है ना, ऐसा है होता है ना धीरे धीरे, ठीक है साहब। अभी जैसे देखो हम जैसे साधर्मी और आप जैसे आत्मार्थी लोग हैं, फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं खींच पाए, तुरंत ऐसा लगता है कि यार कषाय बहुत बढ़ गई, कषाय वाली प्रवृत्ति हो गई, यानी क्यों, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं उसमें हम रहना नहीं चाहते, है ना, आकुलता में ही है। तो हमें क्या है उस समय, स्वभाव का पक्ष है ना, बिना सोचे भी हमारी आराधना, पेट की आराधना चल रही साहब, हमें ये पता होना चाहिए, ये महसूस वाली बात है। आप मात्र चिंतन तक, अब बैठ के सोचने तक, बुद्धिपूर्वक तक, ये पूर्व में बहुत हो गया, कदाचित कोई कर लेवे तो निषेध नहीं है, और योग्य समय में वो ऐसी कोई बात आवे तो करनी भी चाहिए, उसका कोई निषेध नहीं है, मगर ये मिसिंग पॉइंट जो है वहां हमें आना जरूरी है। बाहर में किसको क्या लगता है यार, ये बहुत क्रोध करता है, ये करता है ना, हो सकता है कि पंडित जी मेरे बारे में ऐसा आप इमेज कर, अरे पंडित जी यार तो सुबह में इतनी जोरदार बात करते हैं, और अभी तो यार ये बातें हो गई, है ना, आप क्या कर सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे वो कषाय जमी नहीं, जची नहीं, मैं अपनी आराधना में हूं, होता है। और ऐसा होता कि नहीं होता, अच्छा हमें कोई रोक नहीं सकता,
है ना। यहाँ की तो लोगों को तो हमारी तो बहुत बड़ी इमेज है सब में, तो वो रोक नहीं सकते। अच्छी कोई बात करते होंगे तो बोलने आएंगे पंडित जी क्या कर रहे हो, बैठो, है ना। तो हमें कोई रोक नहीं सकते। हम रोक देंगे तो हम इनको जवाब दे सकते गुणस्थान से, बहुत बढ़िया दे सकते, विद्वान है, क्या हो जाएगा इससे, सही है क्या ये। मुझे इस प्रकार का मूड हो गया, बस आपको मैं समझा रहा हूँ सर। तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, कोई पिताजी डांट देने वाले अभी है नहीं, कुछ चीज नहीं है। बताइए तो फिर क्या होगा। फिर भी हम वो जब प्रसंग थोड़ा चला तो फिर चलो जाते हैं साहब, जय जिनेन्द्र। क्यों? क्योंकि हमें इसमें नहीं परिवर्तता है साहब, ये बहुत परेशान। वो अभी मुझे मेरी खबर, आपको आपकी खबर, तो अभी ये देख लेना है वो पॉइंट हमारे में है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या करें, ये भी एक प्रश्न है। अगर ऐसा नहीं है, वलन नहीं है, तो आप सत्संग करें, बारंबार इसको सोचें, क्योंकि कसाय दुख रूप है, वो है, लगता है, उसकी सिद्धि करें, है ना। मैं शुद्ध हूं, उसकी सिद्धि करें सब। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, मैं जितनी सुबह में बातें लेता हूं, अनुभूति की मटेरियल है वो सारी बात की सिद्धि होती है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी घर कर जाती है वो चीजें कि वर्तमान पर्याय उलझने पर भी वो हमें उसमें पक्ष नहीं आता। तो वो हमारी वो कर्म के वजह से देखे तो बहुत स्थिति और वो अनुभाग वाले कर्म बंद नहीं होते, और ऐसे और उदय में आते हैं, वो भी उधर ही उधर संक्रमित होके इतने उदय में आते हैं कि हमें अपना काम करने में बाधा पहुंचाने में निमित्त नहीं बन सकते, और हम अपना काम सहजता से करते रहते हैं। और वो फिर परिणमन रूप वेद ज्ञान में जिस दिन शुद्धोपयोग में हमने अपने भगवान आत्मा का दर्शन कर लिया, तो कोई बहुत बड़े शुभ चौगड़िया हो ही गया। अब जब भी वो शुभ चौगड़िया है, शुभ काल कहो, शुभ चौगड़िया कहो, शुभ क्षेत्र कहो, जो आपको कहना हो कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे सम्यक दर्शन कहो कि नहीं कहो, हमें अपना हमारे भगवान आत्मा को हमने इतना करीब से क्या अनुभव में देखा, स्वयं वो परिणमन में हमें ख्याल में आया, और वितराग होके जैसे अब अरिहंत भगवान जितनी केवली है सीधा अरिहंत, वो जैसा स्वाद लेते हैं वैसा स्वाद आता है इस काल में, वैसे ही हो जाते हैं। कौन सी गाथा? 143 कर्ता कर्म अधिकार की, तो हो रहा है ऐसा सब। ये भी एक कंसेप्ट है, मैं आगे ले सकता हूं, मगर ये भी कंसेप्ट है। अब कुछ समझ में आया? इनकी कुछ शंकाएं हो तो पूछना, रात को आ जाना, घर पे आ जाना। हमने 24/7 कह रखा है। हमारे जो अनुभूति के बारे में कोई भी रात्रि में 2 बजे कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन के साथ मत सोना, हो सकता है कि आखिरी रात हो, इसकी सुबह ना हो। कंफ्यूजन लेके कहीं नहीं जाना, जानकारी वाला वो बाद में पूछना 2-4 दिन के बाद, पर एक अनुभूति वाली बात। और आपको पता है फोन आते भी है, रिकॉर्ड कर लेता हूं, फोन आते, ऐसी चीजें उनको कोई प्रयास कर रहा है, करते हैं, अनेक जीव है, और युवा है ना, काले बाल वाले, ऐसा कह रहा हूं। क्रांति तो है ही। गुरुदेव श्री की जो पंचम काल के अंत तक बात चलने वाली सो है, आप सोच नहीं सकते। ऐसे लोग सोच रहे हैं अभी कि ये भी सोचता होगा, झज गई तो झज गई, क्या रे तो सही है, इसमें तो कुछ हाथ लग रहा है। विचार करते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। और फिर जब अपना अपना हो जाता है, इसमें अपनाते हैं, तो वो फिर कभी नहीं जाता, वो हर समय चलता है। उसमें जो भी है ना, उसमें मनता तीव्रता भले आती हो, मगर ये सब जो वलन वाली बात पक्की हुई, मैं तो कह रहा हूँ, वो तो बहुत एकाध जीव होते, बाकी हर समय यही पक्का होता। कैसे भी परिस्थितियां हो, बड़ा नुकसान हो गया हो, ये हो गया हो, शरीर में रोग हो गया हो, डॉक्टर ने बोला कि भाई आप 1 आध घंटा के लिए हो, उस समय भी वास्तव में 1 घंटे के लिए मैं थोड़ी रहता हूँ, मैं तो हमेशा रहता हूँ, बिना बोले उसकी फीलिंग्स रहती है। और कसाई जो है ना, टेम्पररी जो भय वाली होती है ना, चारित्र वाली, वो भी रहती है भय वाली। कदाचित दर्शन मुंह वाली भी रहे तो भी उसके सामने अपना पड़ाव, अपना प्रपोजल, ज्ञान सद्धान अर्थात तो पकड़ वाला ज्ञान ने वो रखा है। मोह जब अपना प्रपोजल रखे, हम अपना प्रपोजल सामने रखना चाहिए। और रखना क्या है, हमारा तो प्रपोजल ओपन है, वो तो आता उदय आवे तब आवे, हमारा तो वो प्रोटेक्शन मैटर है, वो साथ में चल रही है। ये वाली बात है, वो आराधक जीव है ना, मंदिर में बैठने वाला, पूजन करने वाला, और बाहर में मैं इसका निषेध नहीं करता, वो ही कोई आराधक है ऐसा नहीं, उसमें हो ही सकते हैं,
और अगर ये तत्व निर्णय नहीं करता और उसके पोषण का काम उसको ईमानदारी से नहीं करता तो मंदिर में बैठे या फिर घर में बैठे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ये पोषण हो तो अगर वो दुकान के थड़े पे भी बैठा हो तो आराधना कर रहा है, उसे पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ दुकान के थड़े पे आराधना कर रहा है, तो लोग फिर मंदिर आना छोड़ देंगे। तो ये पता नहीं है, ऐसे लोग भाग भाग के आते मंदिर, वो कहाँ दिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं, बुलाना नहीं पड़ता, वो सहज आते, वो अपनी गरज के लिए आते, है ना। बाकी सबको बुला बुला के भाई आप डोनर हो, आपको तो आना ही चाहिए, ऐसा है। बहुत कुछ बातें हैं सब। मैं तो समाज से जुड़ा हुआ हूं तो परिस्थितियां थोड़ी पता चलती तो मैं उदाहरण में ले लेता हूँ। कुल मिला के ये जो वेद ज्ञान की जो मौसम है ना, वो बहुत बढ़िया मौसम है साहब। वो मौसम है ना, वो ऐसा कोई उसमें 3 साल 3 महीने आवे 3 महीना नहीं आवे ऐसा नहीं होता, निरंतर बातें होती है ना। अब कल है तो कल में मुझे लगता है कि रिवीजन वाला ही होगा, या फिर कल देखते हैं। अभी तो है ना कल और परसों भी देखते हैं, अतुल कोई प्रवचन दे देगा तो कल लूंगा। देखो ऐसा है, ठीक है। सहजानंदी सोदस्य रूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोदस्य रूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।